All right, hello everyone. Thank you for coming to my channel. I don't know why you are here, but good for you. You're going to learn something today. What are we going to talk about today? We are going to talk about prompting. What is prompting? Prompting is giving GPT or giving any LLM instructions on what you want to get done. Now, the problem with prompting is, or the problem with this whole GPT or this LLMs are that they are smart, yet they are very dumb. How are they smart? They can do things that you can't do, or you'll take a longer time doing. How are they dumb? They'll do exactly what you tell them to do, and you are also dumb because you can't tell what you want. Give it a thought. You'll understand it. I said what I said. Now, how do we actually get shit done from LLMs? That is by giving it a great prompt. Now, I have been using GPT since it came out, and 50% of time I am just thinking about a good prompt कि मैं क्या इसे बोलूं कि मैं जो चाहता हूँ वो ये करके दे मेरे को. That is because I myself has no have not deconstructed the thing that I want to do. क्योंकि मेरे लिए जो चीज़ ऑब्वियस है, जो मैं आर्टिकुलेट करके मेरे को जो लगता है ऑब्वियस है, वो जीपीटी को नहीं पता ना वो ऑब्वियस सी बात कर रहा हूँ मैं. I'll show you an example. Okay, so what is going on this in this video? First, I'll give you a demonstration. There's a meta prompt about which we are talking about. I will give you a demonstration of that meta prompt. What that meta prompt does is it turns your mediocre prompt into a very good prompt. Means what language is there in your mind. जैसे कि मेरे को कुछ I want X done, तो मैं जीपीटी को क्या बोलता हूँ मेरे को ये X काम करना है, तो वो X काम नहीं कर पाता. लेकिन जब मैं इस मेटा प्रॉम्प्ट को बोलूंगा कि मेरे को ये X काम करना है, तो वो मेरे को मेटा प्रॉम्प्ट मेरे को बताया कि अच्छा तुम जीपीटी को क्या बोलो, मतलब कि what prompt you should use to get this shit done. Okay, so this is the crux of this video. This video is in two parts. पहले पार्ट में क्या करेंगे, I'll give you a demonstration of the prompt, meta prompt, and after this first part you can just feel free to close this video and just go and use the prompt and तबाही मचाओ यार, फैलाओ जो करना है करो उसके साथ. बट इफ यू वांट टू नो दैट ये जो मेटा प्रॉम्प्ट मैंने बनाया क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या फ्रेमवर्क यूज किया, एंड व्हाई इज इट द वे इट इज, तो उसके बारे में पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे. बट दैट डज नॉट मीन यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो. मैं नहीं बोलता भाई पूरा वीडियो मत देखा करो, मेरा टाइम पास वाली बात है. You cannot minimize. Okay, I don't want to minimize. I want to give a demo. Yeah, share my screen. Okay, great. So now I'm going to give you a demo of the meta prompting technique. First, I need to think. मेरा copy किया हुआ है ना prompt को? I don't know. Let's find out. What's on the agenda today? I want a sales pitch. Want a. I want a. अच्छा इसी का कुछ ये करते हैं ना. सिंपल रेसिपी फॉर अ डिलीशियस डेजर्ट. नहीं, ये बहुत ही इजी हो जाएगा. सेल्स पिच ही करते हैं. I want a sales pitch for what? For let's say microphone. For microphone. ओके, कुछ कुछ तो इसने लिखा है, बट दिस इज आइडियली नॉट आई वांट व्हाट आई वांट, राइट. मेरे को अगर ये माइक बेचना होगा आई कैन नॉट यूज दिस थिंग whatever it is because it is very generic, it is very ambiguous. So now, to make it better, to make this prompt better, what will I do? मैंने क्या लिखा, आई वांट अ सेल्स स्विच फॉर माइक्रोफोन. ठीक है, न्यू चैट में जाते हैं. ये एक मेटा प्रॉम्प्ट है. ये प्रॉम्प्ट है जो आपको प्रॉम्प्ट लिखने में मदद करेगा. इसको मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से, टेंशन मतलब पढ़ने की टेंशन मतलब, नीचे में दे दूंगा. एंटर मारा. अब यही आपको बता रहा है आपको क्या करना है. आपको क्या पूछ रहा है वो, टारगेट एआई. मेरे को क्या यूज करना है, मेरे को चैट जीपीटी यूज करना है. चलो, डिटेल यूजिंग क्या है, चैट जीपीटी. चैट जीपीटी. ओके. नाउ व्हाट आई वांट टू बी डन. मैंने क्या लिखा था पहले, क्या लिखा था, आई वांट अ सेल्स पेज फॉर
माइक्रोफोन। अभी मैंने डिटेल लिखा है ना, इसलिए ये मेरे से और क्वेश्चंस पूछ रहा है। टू गिव अ वेरी बेटर प्रॉम्प्ट, आप बेसिक लिखोगे और बेसिक में सिर्फ इतना लिख दोगे, दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड प्रॉम्प्ट, ओके। बट स्टिल लेट्स एंटरटेन दिस वन राइट नाउ। यहाँ मैंने डिटेल लिखा, उसके जगह अगर आप बेसिक लिखोगे तो ये सेकंड स्टेप नहीं करना पड़ेगा। टारगेट ऑडियंस पूछ रहे हैं, किड्स। यूनिक एंगल क्या है? बिग माइक, बहुत बड़ा माइक है मेरा। थर्ड क्या, टोन कैसा है जी? फनी, बिकॉज देयर शुड बी फन इन एवरीथिंग। मीडियम, वेयर विल दिस बी यूज्ड? दिस विल बी यूज्ड ऑन पब्लिक पार्क्स। आई नो हाउ दिस इज साउंडिंग एट द टॉप ऑफ माई हेड, यही सही चीजें आई, विच इज बैड। ओके, नाइस, इट हैज गिवन मी अ प्रॉम्प्ट। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं यहाँ से यहाँ तक गया, कंट्रोल+C किया, न्यू चैट में गया, कंट्रोल+V किया, एंटर दबाया, एंटर। और जो मुझे चाहिए था वही दिया। मैंने बस पूछा उसको, वही था कि आई वांट अ सेल्स पिच फॉर माइक्रोफोन। फिर उसने ये सारी चीजें सोची कि क्या क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए टू ग्रैब अटेंशन, सेटिंग कैसी है, माइक्रोफोन का अपील इसने मेरे से पूछा। फिर टोन एंड स्टाइल में से पूछा, फनी मैंने बोल दिया। और वो फनी को किस तरह से एक्सप्लेन करेगा चैटबॉट को, वो इसने देखा। मैं 5 मिनट और सोचा तब मैं विट्टी, एग्जैजरेटेड एंड एनर्जेटिक पे आ सकता था, बट उतना मुझे सोचना नहीं है ना। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड विच वी आर ट्राइंग टू ऑटोमेट नाउ। इसने कुछ कुछ चीजें खरी 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 खरी, एंड वी हैव a good enough sales pitch which will be better for any use case. अभी मैंने सेल्स पेज के लिए यूज किया है, आई हैव यूज्ड इट फॉर कोडिंग एज वेल, आई हैव यूज्ड इट फॉर ऑटोमेशंस एज वेल, N8N वर्कफ्लोज बनाए हैं मैंने इस प्रॉम्प्ट के साथ। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ऑलराइट। इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप, ये बहुत ही बेसिक काम है ये सेल्स पिच का। तो नाउ दिस इज वेयर द पार्ट 1 हैज एंडेड। आपको अभी इधर छोड़ के जानना है वीडियो, आप जा सकते। लेकिन अगर आपको जानना है कि मैंने ये जो प्रॉम्प्ट बनाया क्यों बनाया, और जैसा बनाया वैसा कैसे बनाया, क्यों बनाया वैसा, सो जस्ट हैंग ऑन फॉर 1-2 मिनट और। तो जो मेथोडोलॉजी मैंने यूज की है, दैट इज कॉल्ड 4D मेथोडोलॉजी। व्हाट मेक्स अ prompt good prompt? If it follows this simple structure of 4D methodology। क्या क्या है इसमें? आई हैवंट इवन रेड दिस प्रेजेंटेशन, ये भी एआई जनरेटेड है। यू कैन रीड इट थ्रू इफ यू वांट, बट मैं बस अब फ्लो में बोलता जाऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या प्रॉब्लम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट वी आर ऑल्सो डम्प, जीपीटी इज ऑल्सो डम्प, बट जीपीटी हैज मोर पोटेंशियल। प्रॉमिस क्या है वो भी ठीक है, आपको मैंने डेमो ही दे दिया। या दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि ये जैसा है वैसा क्यों है। तो what prompt a best prompt, good prompt, a good prompt is, it has this 4 key elements, which is deconstructing, which has for the first element is deconstructing। deconstructing means कि आप क्या करना चाहते हो उसे deconstruct करो ना। आपको सेल्स पिच चाहिए, किसकी सेल्स पिच चाहिए वो भी बताओ यार, deconstruct करके बताओ मेरे को। और उस सेल्स पिच के साथ आप करना क्या चाहते हो, इंटेंट क्या है आपका। आपको कन्वर्जन चाहिए, आपको लीड्स चाहिए। तो हमें लगता है कि हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं, लेकिन जीपीटी को नहीं पता ना। दैट इज वाई जीपीटी को समझाने के लिए यू हैव टू डिकंस्ट्रक्ट योर थिंग, यू हैव टू डिकंस्ट्रक्ट योर इंटेंट। आप उसे एम्बिग्विटी से दूर करो, उसे चीजें अच्छे से बताओ, डिकंस्ट्रक्ट करके बताओ। एक्सट्रैक्ट द इंटेंट, आइसोलेट द नेसेसरी नेसेसरी एंटिटीज। इसमें एंटिटीज क्या है, मतलब कि कौन कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हमारे सेल्स पिच में क्या था क्रिटिकल कंपोनेंट हमारा? क्रिटिकल कंपोनेंट रहा होगा कि हम्म, हमें क्या करना है, हमें सेल्स पिच बनानी है, कैसी सेल्स पिच बनानी है, किसके लिए बनानी है, हाँ किसके लिए बनानी है उसने पूछा हमसे। और फिर
टोनालिटी पूछी। तो ये नेसेसरी एंटिटीज इसने आइसोलेट की है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों में एंटिटीज आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। एंड देन फोर्थ इज लॉकिंग डाउन द नॉन नेगोशिएबल कॉन्टेक्स्ट, कि भाई मुझे एक एलिवेटर पिच चाहिए जो मैं 2 मिनट के अंदर बोल सकूं, या मुझे आधे घंटे की पिच चाहिए जिससे मैं वेंचर कैपिटल रेज कर सकूं। सो these these are the things that deconstructs your intent. So every great prompt has its intent deconstructed. The second D is diagnose. आपने डिकंस्ट्रक्ट करके बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन अब आप उसको डायग्नोस भी करोगे कि जब हो जाए तुम्हारा काम, भाई तुम प्रॉम्प्ट में बता दोगे यार, जब तेरा काम हो जाए ना दोस्त, तो एक काम करना ना, चेक कर लेना कि तूने ये किया क्या, तो ये फॉल्ट हो सकते हैं, ये फॉल्ट मत करना प्लीज। मतलब तुम प्रॉम्प्ट में ही उसे बता दोगे कि तुम्हारी क्या गलती हो सकती है, डायग्नोस भी वहीं पे कर लो। दैट मेक्स अ गुड प्रॉम्प्ट। थर्ड इज डेवलप। अब आप उसे, आपने उसे इंटेंट बता दिया काम क्या करना है, और आपने उसे ऑडिटिंग फैक्टर्स भी बता दिए। अब आप उससे काम करवाओगे कि भाई अब मैं तुम्हें रोल दे रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ अब मैं तुम्हारा, कि आप हो एक मैकिन्सी कंसल्टेंट स्पेशलाइजिंग इन मर्जर एंड एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कंसल्टेंट आप दोनों करते हो काम। मतलब कोई भी आपने उसे रोल दे दिया, अब आपने उसे एक तबका दे दिया, एक अथॉरिटी दे दी, और तब वो अपना तब वो अपने हिसाब से उसके हिसाब से काम करेगा। उसमें चेन ऑफ थॉट जो हम देखते हैं ना, डीप रिसर्च जब हम टाइप करते हैं जीपीटी में, तो ये डीप रिसर्च ऑटोमेटिक होगा हमारे इसी प्रॉम्प्ट में। एंड ये जब जब हम इसे ये एक रोल देते हैं और थॉट सोच समझ के रोल देते हैं, तब हम उसे एसेंशियली क्या दे रहे हैं, एक माइंड दे रहे हैं और एक मिशन दे रहे हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट क्या है भाई? यार ये कभी अटका नहीं है, आज पहली बार अटक रहा। एनीवेज, वी हैव कवर्ड द मेजर पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक रिकैप। डिकंस्ट्रक्ट, डायग्नोस, क्या था? डिकंस्ट्रक्ट करने का, डायग्नोस करने का, रोल देने का, है ना, रोल देने का। तो ये तीन चीजें अगर ये तीन चार चीजें अगर आपके प्रॉम्प्ट में है, देन आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट होता है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से ही करना चाहिए मैं तो बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कॉग्निटिव लोड नहीं देना अपने आप को, देन यू कैन यूज माई मेटा प्रॉम्प्ट विच विल डू ऑल ऑफ दिस फॉर यू। नाउ फॉर 99% ऑफ टास्क दिस विल बी इनफ, बट फॉर दैट 1%, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता चल गया है कि क्या डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करना है। तो अब आप खुद से भी इस मेटा प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हो। मेटा प्रॉम्प्ट चेंज नहीं भी करना तो आप खुद अपना अच्छे से एक बढ़िया प्रॉम्प्ट आप खुद लिख सकते हो। यू आर नाउ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पैसे भी नहीं देने पड़े। यू आर नाउ अ ग्रेट प्रॉम्प्ट इंजीनियर। वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, then don't ask me in the comments, मैं मजे के लिए बना रहा हूँ वीडियो। चलो बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई डोंट नो व्हाई यू आर हियर, बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड कीप दिस वीडियो टू योरसेल्फ, ज़्यादा शेयर मत करना। आई लाइक गेट कीपिंग माई शिट।